Hello students, I hope you all are fit and fine. Students, in our last video, we have read about the different nutrients that is present in food. In this class, we are going to read about what is perfect health and how we can maintain perfect health. It means that how we can keep our body healthy. So let's start our today's EVS class and let's proceed our next topics of chapter number 5, that is food for health. Hello students, let's proceed our chapter number 5, that is food for health. In our last class, we have discussed about the different type of nutrients that is present in food. In this class, we are going to talk about perfect health. So let's start our today's class. So students, let's talk about our next topic, that is perfect health. What is perfect health? Perfect health is a health when our body is completely fit and fine. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे बॉडी का हर एक पार्ट प्रॉपरली फंक्शन करता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो हेल्थ है वो परफेक्ट हेल्थ है. वी इंजॉय परफेक्ट हेल्थ व्हेन, तो हम कब परफेक्ट हेल्थ को इंजॉय कर सकते हैं? When all part of our body perform their function without any discomfort, यानी हमारे बॉडी का हर एक पार्ट बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दर्द के जब अपने फंक्शंस को प्रॉपरली करता है या करेगा तो इसका मतलब ये है कि वी आर enjoying our perfect health. So when different parts of our body they perform their functions well without any pain, without any problem, so we can enjoy perfect health. We are free from any kind of disease when inside our body there is no any kind of disease. अगर हमारी बॉडी पूरी तरह से डिजीज़ फ्री है, तो अगर हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है तब हम परफेक्ट हेल्थ को इंजॉय कर सकते हैं. वी हैव द राइट बॉडी वेट, तो स्टूडेंट जो हमारे बॉडी का वेट है वो हमारी हाइट के हिसाब से होना चाहिए. सो इन दिस वे वी कैन इंजॉय अ परफेक्ट हेल्थ. अगर हमारे बॉडी का वेट एकदम करेक्ट है, सही है, सो इट मीन्स दैट आवर बॉडी इज़ हेल्दी. We have enough stamina and energy to perform our daily activities. So stamina means what? Strength. So when inside our body we have good stamina and energy, then only we can perform our all physical work, our daily activities. We sleep for at least 6 to 8 hours daily. So at least we have to take a sleep 6 to 8 hour. तो अगर हम 6 से 8 घंटे अगर सोते हैं तो इसका मतलब है कि दैट वी आर जस्ट परफेक्टली हेल्दी एंड आवर बॉडी हेल्थ इज़ ऑल्सो गुड. सो लेट्स टॉक अबाउट की टू परफेक्ट हेल्थ. सो जो अभी हमने पढ़ा था वो सारे परफेक्ट हेल्थ हम कैसे इंजॉय कर पाएंगे इसके बारे में था. नाउ हाउ वी कैन मेंटेन परफेक्ट हेल्थ. अब हम कैसे अपने बॉडी को परफेक्ट हेल्दी रखेंगे, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट की टू परफेक्ट हेल्थ. सो व्हाट आर दैट कीज़? सो दैट कीज़ आर एक्सरसाइज, गेम एंड योगा, प्रॉपर स्लीप एंड रिलैक्सेशन, healthy diet, personal hygiene and clean surrounding. So if we are following all these things, so definitely we can maintain perfect health. So let's discuss about these topics one by one. So we will talk about first exercise, game and yoga. So exercise, game and yoga, you know that student, these things are very very important for our health. Exercise keep our body healthy. तो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एकदम अच्छी तरह से हेल्दी हो जाती है. अब कैसे होती है? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं पूरी बॉडी का मूवमेंट जो होता है वो एक साथ होता है, तो इससे हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है एंड ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दे कैन फंक्शन वेरी वेरी वेल. Walking, jogging or playing any sport is a good means of exercise for the body. So walking, jogging or playing any sport
this is a very good exercises. So by all these exercises we can maintain a perfect health. हम अपने बॉडी को अच्छी तरह से हेल्दी बना पाएंगे इन सब एक्सरसाइजेस की वजह से. सो व्हाट आर दीज एक्सरसाइजेस? वॉकिंग, जॉगिंग. आपके घर भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स पार्क में वॉकिंग करते हैं, सुबह उठ के वो जॉगिंग करते हैं. सो क्यों करते हैं? बिकॉज ये सब करने से उनके शरीर का जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहता है. योगा एक्सरसाइजेस लाइक डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम एक्सेट्रा इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन, मेमोरी, आई साइट एंड कीप अस फिट. तो योगा के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, स्कूल में भी योगा होता है. तो योगा is a very good exercise. By doing different yoga exercises like deep breathing, pranayam improves blood circulation. हमारा blood circulation improve करता है, हमारी memory को भी बहुत strong बनाता है, हमारी आई साइट यानी हमारी देखने की क्षमता भी दोगुनी बढ़ जाती है. एंड इफ़ ऑल दीज थिंग्स आर गुड, अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, हम चीज़ों को अच्छी तरह से देख पाते हैं, सो रियली बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स वी जस्ट keep our body healthy. Regular exercises also help us to fight diseases. तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और इसकी इम्यूनिटी जो बढ़ जाती है यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है. सो आवर बॉडी कैपेबल टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज. Now next topic we have proper sleep and relaxation. So student, after working a long time in a day, it means in a day we are doing too much work, we are doing our daily activities, too much physical work, and because of that our body become tired and we need rest. अब जब हम दिन भर के काम से थक जाते हैं तो हमें आराम की ज़रूरत होती है. We get rest by proper sleep. तो हम अपनी बॉडी को अपनी नींद पूरी करके उसको आराम दे सकते हैं. प्रॉपर स्लीप रिलैक्सेस आवर बॉडी एंड माइंड सो दैट वी स्टे हेल्दी. अब जब हम अच्छी तरह से हमारी नींद पूरी होती है तो इससे हमारा बॉडी और हमारा शरीर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं. सो बाय मेकिंग आवर बॉडी एंड माइंड बोथ रिलैक्स वी अगेन मेंटेन आवर परफेक्ट हेल्थ. नेक्स्ट टॉक अबाउट हेल्दी डाइट. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज हेल्दी डाइट? So healthy diet means eating a variety of food that give us the nutrients we need to maintain our health. We feel good and happy. So healthy diet, it includes different nutrients like carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, rough phage and water. So about all these nutrients we have already read. So healthy eating is a necessary to keep our body fit, and by taking a balanced diet only we can keep our body fit and healthy. We should follow some rules while cooking and eating. Okay, so to get this nutrient in a perfect way, when we are cooking our food we have to टेक प्रिकॉशंस ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. यानी खाना बनाने, जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फूड में ही बने रहते हैं और जब हम उस खाना को खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में खाने के द्वारा पहुंच जाते हैं. स्टार्ट योर डे विथ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. ओके, सो इन मॉर्निंग वी हैव टू स्टार्ट आवर डे विथ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. तो हमें अपने दिन की शुरुआत एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट से करना चाहिए. सो हेल्दी ब्रेकफास्ट मीन्स अ हेल्दी डाइट. ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन प्रॉपर क्वांटिटीज़. तो हमें ग्रेन्स यानी सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी में यानी कि सही मात्रा में इंक्लूड करना चाहिए. Do not overcook or deep fry the food since it leads to loss of vital nutrient. Okay, तो जब भी हम खाना बनाएं हम एक प्रॉपर टाइम रखें कि कितने देर में ये खाना पक जाएगा. We should not overcook, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा हमें किसी भी फूड को, किसी भी खाने को नहीं पकाना चाहिए. एंड वी
शुड नॉट डीप फ्राई द फूड आइटम्स, तो ना ही हमें डीप फ्राइंग करना चाहिए और ना ही ओवर कुकिंग करनी चाहिए। जब भी डीप फ्राई और ओवर कुकिंग हम करते हैं, इससे क्या होता है, इट लीड्स टू लॉस ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो जो फूड आइटम में बहुत ही इसेंशियल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। सो वी शुड, इट मीन्स ओवर कुकिंग एंड डीप फ्राइंग वी हैव टू अवॉइड। वॉश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग देम। तो राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन्हें हम बनाने के पहले, कुकिंग करने के पहले हमें इन्हें वॉश कर लेना चाहिए। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, as most of the water soluble nutrients get washed away। तो फलों और सब्जियों को हमें काटने के पहले ही वॉश कर लेना चाहिए, यानी कि अगर हम इन्हें काटने के बाद वॉश करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, यानी वो इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो जब भी कटे हुए फल और सब्जियां जब पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो जो इनमें वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पानी के साथ धुल जाते हैं, वॉश्ड हो जाते हैं। सो दिस इज़ अगेन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो वी शुड नॉट डू दिस, वी हैव टू अवॉइड दिस। बिफोर ईटिंग और बिफोर कटिंग we have to wash our fruits and vegetables. Always keep food in clean and covered containers। तो जब भी खाना को स्टोर करना हो, फूड को स्टोर करना हो, we always use clean containers and we have to cover also that containers। Wash your hands before handling any food item। किसी भी खाने को टच करने के पहले we have to wash our hands properly। Eat slowly, take small bites and chew the food properly। तो खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए, खाने के हमें स्मॉल बाइट्स यानी स्मॉल पीसेस उठाने चाहिए और फिर उन्हें हमें धीरे धीरे चबाकर अच्छी तरीके से खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, इट मीन्स दैट वी हैव टू ईट फूड अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो हमें जितनी भूख है, जितनी इच्छा है, उसी के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर अ वेरी important to maintain a perfect health। So students, let's talk about healthy food combination। So what is the meaning of this healthy food combination? Healthy food combination means eating a variety of foods that give us the nutrients we need to maintain our health। Then only we feel good and we can capable to maintain our perfect health। So let's talk about healthy food combinations। Food combination of pulses and grains provide protein in rich amount। So student, you know that proteins are the rich sources of pulses are the rich sources of protein। जो pulses होते हैं यानी जो दाल होती हैं उनमें प्रोटीन होता है। So a combination of pulses and grains, तो जो grains यानी अनाज के दाने, तो ग्रेन्स का और पल्सेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी बॉडी को रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करता है। सो रियली इट इज़ वन ऑफ अ गुड फूड प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव खिचड़ी, ढोकला, इडली, डोसा, वेजिटेबल्स एंड सोया पुलाव। सो ऑल दीज फूड आइटम्स दे कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ पल्सेस and grains। So they are the rich sources of protein। So these food items we have to include in our diet। Next we have food item which combine proteins, carbohydrates, vitamins and minerals are rich sources of energy। They help in growth of the body। For example, aloo paratha, spinach paratha, dal and spinach dosa। Okay, so food item which contain protein and carbohydrate, even vitamin and minerals, they are the good source of energy because it is a combination of different type of nutrients and they help our body to maintain a proper health and also help to आवर बॉडी ग्रोथ। तो हमारे बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। So such food items are aloo paratha, spinach
पराठास, दाल एंड स्पेनिच डोसा. सो उसमें सब्जी वेजिटेबल्स का भी कॉम्बिनेशन, इट मीन्स आलू पराठा की अगर हम बात करते हैं तो इट कंटेन बोथ वेजिटेबल एंड व्हाट ग्रेन्स. तो हम फ्लोर यूज़ करते हैं, फ्लोर मीन्स आटा, और वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं. तो देन वी विल गेट व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ्ड पराठा. बहुत सारे ऐसे हम पराठे बनाते हैं जिसमें फ्लोर भी होता है और कई तरह के हम वेजिटेबल्स भी यूज़ करते हैं. सो ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर वेरी वेरी गुड बिकॉज these combinations provide a different kind of nutrient to our body. So we have to include this stuffed parathas in our diet. Stuffed paratha means ये जो आलू पराठा है, यानी ऐसे पराठे जिनमें हम वेजिटेबल्स को फिल करते हैं, उन्हें हम स्टफ्ड पराठा कहते हैं. Next we have protein, calcium and vitamin E combination keep us healthy and fit. So protein, you know that it is proteins, they are considered as a bodybuilding food. Calcium is a mineral and it is very very essential for to maintain our bones and teeth strong. And vitamin E is also, it means vitamin E is good for our skin. So food item which contain these three nutrients, so really it is very very good to keep our body healthy and fit. So for example we have milk and rice. तो milk और rice को यूज़ करके हम बहुत ही delicious एक डिश बनाते हैं और उस डिश का नाम क्या है, खीर है. एंड मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स, तो आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ करते हो मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स को. सो दीज कॉम्बिनेशंस आर वेरी वेरी गुड एंड these combinations by including these combinations in our diet we can maintain a perfect health. Next we have student personal hygiene and clean surrounding. So अब ये personal, what is personal hygiene? So personal hygiene means how we टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी क्लीनिनेस. तो हम अपने शरीर की जो सफाई करते हैं उसी को हम कहते हैं पर्सनल हाइजीन. सो दिस पर्सनल हाइजीन इंक्लूड bathing, washing our hands and brushing etc. So why personal hygiene is important? Personal hygiene is very very important to stay away from diseases. तो कई तरह की बीमारियों से दूर रखने के लिए अपने बॉडी को पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. सो स्टूडेंट्स, एवरी डे वी कम इनटू कांटेक्ट विथ अ मिलियंस ऑफ जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस. सो वी हैव टू मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन. तो इसलिए अपने आप को जर्म फ्री रखने के लिए, अपने आप को डर्ट फ्री रखने के लिए वी शुड मेंटेन personal hygiene. So we should bath twice a day to get rid of germs and dirt. तो अपने शरीर को जर्म फ्री रखने के लिए एटलीस्ट वी हैव टू टेक अ ट्वाइस बाथ, यानी दिन में 2 बार नहाना चाहिए. We should also brush our teeth twice a day and cut our nails regularly. It is important to wash our hands. So student, we have to cut our nails and we have to also brush our teeth twice a day. यानी कि हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठ के और एक बार सोने के पहले हमें ब्रश करना चाहिए. सो इन दिस वे वी कैन मेंटेन आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी. इट मीन्स कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी. तो गम्स का मतलब क्या होता है, मसूड़े होते हैं, और उन्हीं मसूड़ों में क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं वो फिट होते हैं. तो मसूड़े एक सॉकेट हैं जिसके अंदर हमारे टीथ क्या हैं, फिट हैं. तो भाई हमें अपने मसूड़ों को यानी गम्स को भी हेल्दी रखना होगा. वी हैव टू कट आवर नेल्स रेगुलरली. अब नेल्स कट करना बहुत ज़रूरी है. आप देखते होंगे जब स्कूल डेज था तो आपके नेल्स रेगुलरली असेंबली में चेक होते थे. तो स्टूडेंट इस समय भी आप अपने नेल्स को रेगुलरली कट कीजिएगा. तो if you will not cut your nails, so what will happen, germs enter inside your nails, and when you eat food, no, along with food they will enter to your body and you will suffer from many kind of diseases. तो अगर हमारे शरीर में बीमारियां हो जाएंगी तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और फिर हम अपना परफेक्ट हेल्थ नहीं मेंटेन कर पाएंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स. अब हाथ धोना तो बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन. सो व्हेन वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर
बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। आफ्टर यूजिंग द बाथरूम, सो बाथरूम यूज़ करने के बाद हमें प्रॉपरली हैंड वॉश से अच्छी तरह से अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, सो वी हैव टू ऑलवेज यूज़ हैंकी during sneezing and coughing, and after sneezing and coughing we have to wash our hands. sneezing और coughing का मतलब क्या होता है? छींकना और खांसना। तो छींकने और खांसने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर टचिंग पेट्स और एनिमल्स, तो पेट्स, अगर हमारे घर में कोई पेट है तो उसको छूने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए, और एनिमल्स को भी अगर हम टच करते हैं तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर डूइंग एनी फिज़िकल एक्सरसाइज, कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करने के बाद या कोई भी काम अगर हम कर रहे हो तो काम करने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर विजिटिंग अ सिक रिलेटिव और अ फ्रेंड, तो अगर हम किसी ऐसे रिश्तेदार के से मिलने गए हो जो बीमार है, या किसी ऐसे फ्रेंड से मिलने गए हो जो बीमार है, तो वहाँ से लौटने के बाद भी हमें अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपरली अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। Maintaining clean surrounding is also very important to stay healthy. Okay, so after personal health we have to maintain our surroundings cleanliness also. तो घर की सफाई के साथ साथ हमें अपने आस पड़ोस की भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ घर साफ है तो नहीं काम चलेगा, फिर जर्म्स, बैक्टीरिया, कीटाणु सब बाहर से ही अंदर आते हैं। तो घर साफ करने के साथ साथ हमें बाहर की भी सफाई करनी चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो आवर गार्बेजेस और डस्ट डायरेक्टली ऑन रोड्स। तो कभी भी अपने घर का जो गार्बेज होता है, जो डस्ट होता है, उनको रोड पे ले जाके नहीं फेंकना चाहिए। It's quite better we keep one dustbin, and inside that dustbin we have to store all our garbages. So cleanliness of surrounding, यानी हमारे वातावरण की भी साफ़ सफाई, हमारे घर के आसपास की भी सफाई बहुत ज़रूरी है, because surrounding is a very important part of our society. So हमें अपने घर के साथ साथ अपने सराउंडिंग को भी साफ़ रखना चाहिए। And all these are the key. If we are following these key, then only we can maintain. Students, let's talk about changing food habits. So nowadays our food habits are changing day by day. यानी जो हमारी खाने की आदतें हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। Earlier, the diet of the people included a lot of homemade nutritious food. तो पहले जो हम डाइट इंक्लूड करते थे, यानी जो हम खाने के लिए जो चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करते थे, उनमें घर की ही बनी न्यूट्रिशियस यानी हेल्दी चीज़ें इंक्लूड होती थी। बट nowadays consumption of packed food products has increased many folds. But nowadays people started consuming a variety of different type of foods which are packed and available in the market. तो अब आजकल लोग पैक्ड फूड ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। मार्केट में कई तरह की डिफरेंट वैरायटी की फूड जो है अवेलेबल हैं, और वो पैक्ड फूड होते हैं, तो लोग उनको ख़रीद रहे हैं और उनको खाना पसंद करते हैं। Many variety of non-alcoholic aerated drinks are also popular among people. So different type of non-alcoholic aerated drinks are also available in the market, and these drinks are very popular among people. People, they love to drink these non-alcoholic aerated drinks. So non-alcoholic means what? Soft drinks, और एरिएटेड मीन्स विच कंटेन बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इन एरिएटेड ड्रिंक्स में डिज़ोल्व होता है। इन्हें हम फिज़ी ड्रिंक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक साउंड, ये फिज़ी साउंड ऑब्ज़र्व भी किया होगा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। तो जैसे तुम उनको खोलते हो, यू फील वॉट समथिंग लाइक बबल्स, तो वो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। सो दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स आर very popular among people. Nowadays variety of soft drinks are available in the market. People purchase that drinks and enjoy.
Restaurants and food joints serve a variety of mouth watering dishes. सो रेस्टोरेंट का तो मतलब आप जानते ही हो, ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट तरह की खाने की चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हमारे हिसाब से बहुत टेस्टी होती हैं और जिनका स्मेल आते ही हमारा मुंह क्या होता है, इट मीन्स आवर माउथ फिल विथ वाटर, आवर माउथ बिकम वाटरी. एंड फूड जॉइंट्स, सो फूड जॉइंट्स इट विल रेफर टू अ स्मॉल कैजुअल रेस्टोरेंट. तो फूड जॉइंट भी ऐसी एक मतलब कैजुअल प्लेस होती है जहाँ पे खाने की कई तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं. So nowadays restaurant and food joints serve a variety of mouth-watering dishes and are in constant competition with popular homemade Indian snacks like idli, milk poha, etc. So रेस्टोरेंट में और फूड जॉइंट्स में जो फूड अवेलेबल होता है, जो खाने की चीज़ें मिलती हैं, वो मतलब लोगों के हिसाब से बहुत टेस्टी होती हैं. लोग वहाँ पे जाते हैं, खाते हैं और वो ये रेस्टोरेंट और फूड जॉइंट्स भी ये कोशिश करते हैं या फिर दे आर रेगुलर इन कंपटीशन कि जो जैसे घर में जो चीज़ें जो हम स्नैक्स बनाते हैं, जैसे इडली हो गया या मिल्क पोहा हो गया और भी कई सारे के स्नैक्स, कई तरीके के स्नैक्स हम घर पे बनाते हैं. तो ये रेस्टोरेंट और फूड जॉइंट ये कोशिश करते हैं या ये इसी कंपटीशन में लगे रहते हैं कि ये लोग भी उस तरीके की चीज़ें अपने रेस्टोरेंट में बनाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेस्टोरेंट में आकर के और इन्हें खाएं. They serve various items such as potato chips, popcorn, pizza, burger and noodles. तो स्नैक्स बनाने के साथ साथ यानी ये कोशिश करते हैं कि जैसे लोग घर पे स्नैक्स बनाते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं. बट स्टूडेंट्स, द होम मेड फूड इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्टोरेंट फूड. जो होम मेड फूड होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं. कोई भी रेस्टोरेंट या फूड जॉइंट वैसे फूड नहीं बना पाएंगे. हमारी मम्मी जब किचन में खाना बनाती है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि हर एक चीज़ जो वो यूज़ कर रही हो, चाहे वेजिटेबल्स हो या ऑयल हो या सीरियल्स हो, पल्सेस हो, वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए. बट इन रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट पीपल वो ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं. उन्हें सिर्फ अब पैसा कमाना होता है, इसलिए वो किसी भी तरीके की क्वालिटी की चीज़ों को यूज़ करके खाना को बनाते हैं. So restaurant they serve various items such as potato chips, popcorn, pizza, burger and noodles. तो इन रेस्टोरेंट में कई तरह की चीज़ें और भी मिलती हैं. पोटैटो चिप्स आप खाते ही हैं, पॉपकॉर्न आपको पता ही है, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स है, ये सब चीज़ें आप लोग भी खाते हैं. सो स्टूडेंट, डू यू नो दैट वन थिंग, दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड जंक फूड. तो इन्हें जंक फूड कहते हैं. इट मीन्स दैट दीज फूड्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. ये जो फूड आइटम हैं ये हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. इफ़ we are using continuously this restaurant food, so really we cannot maintain perfect health. Even our body becomes sick and our body cannot capable to fight against different kind of diseases. So junk food, it make our body weak. By eating all this junk food we cannot maintain a perfect health. तो junk food हमें नहीं खाना चाहिए, हमें junk food avoid करना चाहिए और we have to include those food in our diet which are homemade, because homemade food is always nutritious and healthy. So students, that's all about for today's class. Next topics we will discuss in our next blank in your book. So see that number 1, starch and sugar are the two type of carbohydrates. Number 2, fruits and vegetables are rich sources of vitamins. Iron helps blood to carry oxygen in our body. A balanced diet contains all the nutrients, water and rough veg in right proportion. Complete the following statement by changing the underlined word. So, this you have to write in your EVS copy. इस exercise को आप अपने EVS copy में कीजिएगा. See that we enjoy perfect health if we sleep for at least 6 to 8 minutes daily. तो minutes
अंडरलाइन है इसे हमें रिप्लेस करना है किस वर्ड से, आवर्स से, तो आप लिखेंगे आवर्स। तो मैंने मिनट के ऊपर लिखा है, आप मिनट के ऊपर नहीं लिखेंगे, आप नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखेंगे, आंसर, एंड देन यू विल राइट दिस लाइन अगेन, वी इंजॉय परफेक्ट हेल्थ इफ़ वी स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स डेली। तो इन लाइन को आप करेक्ट करके और दोबारा से ये लाइन आप लिखेंगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी लेजी। सो लेजी को रिप्लेस किससे कीजिएगा, हेल्दी से। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे आंसर में, एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ वीक। तो वीक को डे से रिप्लेस कीजिएगा, आप लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। Next we have food combination of pulses and grains provide carbohydrate in rich amount. So कार्बोहाइड्रेट को आप रिप्लेस कीजिएगा प्रोटीन से। तो आप नेक्स्ट लाइन में करेक्ट करके इनको इसे नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, फूड कॉम्बिनेशन ऑफ पल्सेस एंड ग्रेन्स प्रोवाइड प्रोटीन्स इन रिच अमाउंट। So student, you have to complete this homework and send me in group. If you have any problem regarding any topic, you just call me or you write in group also. Till that, stay home, stay healthy, use mask and sanitizer and keep yourself safe from infection.